Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen too. He gazed into the poet's eyes. "Who are you, my gifted guest?" he asked. The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. "You have read these poems," said he. "You know me, then, for I wrote them." जैसा कि कवि ने सुना, वह कल्पना कर रहे थे कि महान पत्थरों का चेहरा सुनने के लिए आगे झुक रहा था। उसने कवि की आंखों में देखा और कहा, "हु आर यू? आप कौन हो, गिफ्टेड गेस्ट?" उन्होंने पूछा कि कवि ने पुस्तक पर अपनी उंगली रखी है कि अर्नेस्ट पढ़ रहा था। आपने इन कविताओं में पढ़ा होगा कि वह मुझे जानता तो है, मैंने उन्हें देखा है। Again and again Ernest examined the poet's feature. He turned toward the great stone face, then back. He shook his head and sighed. "Why are you sad?" inquired the poet. "Because," replied Ernest, "all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy. And when I read these poems, I hoped that it might be fulfilled in you." "You hoped," answered the poet, faintly smiling, "to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness." जैसे ही अर्नेस्ट को पता चला कि वह आदमी कौन था, उसने अपनी विशेषताओं को नोटिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह ग्रेट स्टोन फेस की ओर बार बार देख रहा था। निराश होकर अर्नेस्ट ने एक आह भरी। कवि द्वारा उनके दुख के पीछे का कारण पूछे जाने पर अर्नेस्ट ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने भविष्यवाणी के सच होने के लिए अपना सारा जीवन इंतज़ार कर लिया था और उनकी कविताओं को पढ़कर उन्हें उम्मीद थी कि कवि इसे कैसे पूरा करेंगे। अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए कवि ने जवाब दिया कि वह ग्रेट स्टोन फेस के संदर्श होने के योग्य नहीं है। "And why not?" asked Ernest. He pointed to the book. "Are not those thoughts worthy? You can hear in them the distant voice of a heavenly song. But my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thoughts. Why, then, pure seeker of good and true, should you hope to find me in the face of the mountains?" The poet spoke sadly, and his eyes were wet with tears. So too were those of Ernest. Ernest ने कवि से पूछा कि वह खुद को और अपने विचारों को, यानी अपनी किताबों में इतनी खूबसूरती से स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए योग्य क्यों नहीं है। कवि ने उत्तर दिया कि वह इस बात से अवगत था कि उसके विचार एक स्वर्गीय गीत की एक सुरीली आवाज़ सुनाते हैं, लेकिन उसका जीवन उसके विचारों के अनुरूप नहीं था। उसने कबूल किया कि उसने बहुत बड़े सपने देखे हैं, लेकिन वे केवल सपने ही रह गए, क्योंकि उसे अक्सर अपने विचारों में विश्वास की कमी थी। कवि आगे पूछता है कि अर्नेस्ट जैसा आदमी जो अच्छाई और सच्चाई का निरंतर चित्रण था, कवि में ग्रेट स्टोन फेस के सम्मान दिखाई देगा। कवि ने कहा कि ये सब एक उदास स्वर में था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू थे।
At the hour of sunset, as had long been his custom, Anis was to speak to a group of neighbors in the open air. Together, he and the poet went to the meeting place, arm in arm. From there could be seen the great stone face. अब अनिस को खुली हवा में सूर्यास्त यानी सनसेट के समय अपने पड़ोसियों से बात करने की आदत थी, इसीलिए वह और उसका अतिथि यानी गेस्ट हाथ में हाथ लिए सभा स्थल पर गए। सभा स्थल इट मीन्स मीटिंग पॉइंट। द ग्रेट स्टोन फेस भी दिखाई दे रहा था। Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. It was not mere breath that the preacher uttered. They were the words of life. A life of good deeds and selfless love was melted into them. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. उन्होंने अपने दर्शकों के लिए बोलना शुरू किया। अनेस ने उन पर परिचित दयालुता का संचार किया। उनके दिल और दिमाग में जो भी आया वह बोला। उनके शब्दों में एक अनोखी शक्ति थी क्योंकि वह उनके विचारों के साथ मेल खाते थे, और उनके विचार गहरे और व्यवहारिक थे क्योंकि वह इस बात से गूंजते थे कि उन्होंने हमेशा अपना जीवन कैसे जिया। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया बल्कि जीवन के शब्दों को भी साझा किया। वे शब्द जो प्रेम से भरे थे और अच्छे कामों में बिताए जीवन का समर्थन करते थे। जैसा कि कवि ने अर्नेस्ट को बोलते हुए सुना था, उसने खुद से सोचा कि अर्नेस्ट की जीवन कहानी और व्यक्तित्व अपने आप में कविता का एक रूप है जो उसने कभी नहीं लिखा था। अर्नेस्ट की बात सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई और उसने अपने आप को सोचा कि कैसे उसने कभी भी किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रास्ते को पार नहीं किया था। एक सोच समझकर चेहरे के साथ दयालु और कोमल जिसके चारों ओर सफ़ेद बालों की महिमा थी। At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it like the white hairs around the brow of Ernest. At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold, Ernest is himself the likeness of a great stone face." हालांकि कुछ मील की दूरी पर ग्रेट स्टोन फेस उनके बैठक बिंदु से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अनेस के ब्रो यानी बोहे यानी आईब्रो के चारों ओर के सफ़ेद बालों की तरह ही धुंध के साथ उस पर सोने का प्रकाश भी गिर गया। उस विशेष क्षण में अनेस की भव्य अभिव्यक्ति ऐसी थी कि जब कवि ने इसकी तुलना ग्रेट स्टोन फेस के साथ की थी तो वह अपने आप की नियंत्रण नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपनी बाहों को हवा में फेंक दिया था और चिल्लाया था, निहारना बीहोल्ड, निहारना बीहोल्ड। इस तथ्य पर सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस की समानता है। Then all the people looked and saw that what the poet said was true. The prophecy was fulfilled. But Ernest, having finished what he had to say,
took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. हर कोई इसे नोटिस कर सकता था और उन्होंने अंततः यह स्थापित किया कि कवि सच कह रहा था। अंत में भविष्यवाणी पूरी हुई। हालांकि अर्नेस्ट ने अपना भाषण समाप्त कर दिया और कवि की बाह पकड़ ली, क्योंकि वह धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। अर्नेस्ट को अभी भी उम्मीद थी कि एक आदमी समझदार और किसी दिन खुद से बेहतर होगा, जो ग्रेट स्टोन फेस की समानता होगी।